So we start with transmission of power and house wiring. सबसे पहले जहाँ से पावर जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ से स्टोरी शुरू होती है. ठीक है. Just one minute. So transmission of power from the generating station to the consumer, मतलब हमारे घर तक ये इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचता है, वहां तक की स्टोरी है. फ्रॉम transmission of power from generating station to our home to the consumer. So remember, ये पूरी एक उसका जो पाथ है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, वो तुम्हें याद रखनी है. ठीक है. सो आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो फॉर दैट, बट यू नीड टू रिमेंबर अ फ्यू फैक्ट्स. Electric power is generated at power generating stations which are usually located very far from the areas where it is consumed. मतलब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है कहीं बहुत दूर और कंज्यूम होता है यहाँ पे. यहाँ से वहां से यहाँ तक कैसे लाओगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उसका ये स्टोरी है. At the generating station, the electric power is generated at 11 kilovolt. 11 kilovolt means 11,000 volt. किलो 1000 होता है. ठीक है. Because generation at voltage higher than 11 kilovolt causes insulation difficulties. So higher voltages can also be generated, but then there will be very difficult scenario to store and to transmit that power, and there will be insulation difficulties as well. मतलब sparks हो सकती है अगर और ज़्यादा voltage हुआ तो, और spark होगी तो there can be fire and people and things can get damaged. While generation of voltage lower than 11 kilovolt involves a very high current. Since it is not possible to step up or step down DC voltage, the voltage generated is alternating of frequency 50 Hz. That is, its polarity at the terminals changes 100 times in a second, 50 times positive and 50 times negative. तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है और इसके मतलब रीजनिंग्स तुम्हें पता होने चाहिए. फर्स्ट थिंग, व्हाई इज द पावर जनरेटेड नॉट हायर देन 11 किलोवोल्ट? बिकॉज इट विल कॉज इंसुलेशन problems, insulation difficulties. Second, why is the power not generated at a voltage lower than 11 kilovolt? Because then it will generate or involve a very high current. ठीक है. Third, why DC voltage is not generated? Because it is not possible to step up or step down DC voltage. Step up और step down का मतलब है, step up means DC voltage को तुम बढ़ा नहीं सकते. अगर 11 किलो वोल्ट है तो उसको 22 किलो वोल्ट नहीं बना सकते, बट AC को बना सकते हो. एंड दैट्स व्हाई AC, alternating voltage, is used. Alternating voltage of alternating frequency of 50 hertz is used. Now, what is 50 hertz frequency? 50 hertz means in 1 second the voltage goes from positive to negative and negative to positive terminal 50 times each. ये है alternating frequency जो हमें यहाँ पे supply मिलता है. The supply which we get over here is of AC, alternating frequency, alternating current. Alternating current के अपने फायदे हैं, DC के अपने फायदे हैं. कुछ बहुत बड़े मशीन्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, वो सिर्फ DC पे चलते हैं, AC पे नहीं चलते हैं. लेकिन हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक लाइट, फैन, बल्ब, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ये सब AC पे ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलता है. ठीक है. सो जिसमें करंट का सप्लाई यूजुअली लो रहता है उधर ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी काम आती है. सो वी गेट अ सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन इंडिया. The power from generating station is transmitted to the consumer over long distances, not at 11 kilovolt, but at a voltage higher than 11 kilovolt, so as to reduce the loss of energy in form of heat in the line wires used for transmission. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, why is the power generated or why is the power transmitted to the consumer over long distances
at a voltage higher than 11 kilovolt because it will reduce the heat loss, energy lost in the form of heat when it is transmitted. तो ये एक तुम्हें याद रखना है यहाँ से यहाँ तक. यस. आपने बोला था कि डीसी करंट सिर्फ एक स्टेबल करंट ही पास करेगा. यस, इट्स उसका पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहता है. और जो एसी है वो बदलते रहेगा. लेकिन हाँ. हमें तो सिर्फ 11 किलो वोल्ट ही चाहिए. नहीं, वही तो वोल्टेज है, उसका नेचर नहीं है, ये तो उसका क्वांटिटी है कि अप्रोक्सीमेटली हमें हमें नहीं चाहिए 11 किलो वोल्ट. 11 किलो वोल्ट हमें ट्रांसमिट करना है. हाँ, तो पहले 11 किलो वोल्ट का वोल्टेज बढ़ा देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं. फिर जब हम तक पहुंचता है ना वो स्टोरी अभी तुम्हें आगे का पता चलेगा. इट रिड्यूसेस टू 220 वोल्ट्स फ्रॉम 11,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट. ये पूरी जर्नी है. 220 वोल्ट ही हमारे काम का है, हमें उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं. तुमने देखा होगा हर एक बिल्डिंग के बाहर एक रेड कलर का बॉक्स होता है, दो बिल्डिंग के बीच में, जनरली रोड के ऊपर. उधर ऐसा स्कल बना रहता है, खोपड़ी, और ऐसा डेंजर साइन रहता है, उस पर लिखा रहता है खतरा, 440 वोल्ट्स. हैव यू सीन दैट? 440. तुम इधर भी बाहर, बिल्डिंग के बाहर भी है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना, बिकॉज दैट्स अ यू कैन से इंटरमीडिएट सप्लाई बॉक्स या कुछ उसको बोलते हैं. वहां से बड़ा जो एक ब्लैक कलर का केबल है जो इलेक्ट्रिक हायर वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है, वो सब डिवाइड होता है, बिल्डिंग के अंदर के मीटर रूम में जाता है. हाँ, उधर ही हो जाता है वो बॉक्स के अंदर. सो 440 है, 440 को वो 220 बना देता है. इनफैक्ट बहुत सारे एरिया में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं. इट्स नॉट अ बिल्डिंग, स्मॉल हाउस काइंड ऑफ. यू विल नोटिस इफ यू गो ऑन दिस बिहाइंड, वो एली वे है ना, गली जैसा छोटा, हाँ छोटा बंगलो जैसा है, ग्रे कलर का, भूतिया, कोई नहीं जाता अंदर, ऐसे टाइप के रहते हैं, हर एरिया में रहते हैं. जलवायु में कोई रहता है क्या? नहीं. हाँ, अच्छा, ओके, फेयर. बट मीन्स उनका खुद का है. कोई हाइड पार्क में रहता है, हाइड पार्क, उनका भी खुद का है. ये उधर ट्रांसफार्मर रखा रहता है, दैट्स अ ट्रांसफार्मर हाउस. मतलब जो हाई वोल्टेज पे सप्लाई आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसको वो स्टेप डाउन करता है ट्रांसफार्मर, और फिर वो रेड डब्बे में भेजता है. फिर वो रेड डब्बा फर्दर उसको स्टेप डाउन करके तुम्हारे बिल्डिंग में भेजता है, फिर तुम्हारे बिल्डिंग से तुम्हारे घर पे आता है. अब हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं अभी भी, हम लोग वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट हाउ द voltage is sent from generating station. ठीक है, so what they do is they generate it at 11 kilovolt, then they step it up, मतलब they increase the voltage by using a step up transformer, then they supply it. ठीक है, सब उसको स्टेप अप करके सप्लाई करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट कम हो, हीट लॉस कम करने के लिए. ओके, सो एक जितना ज्यादा करंट उतना कम हीट. उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना करंट कम हो जाएगा और हीट कम रहेगा. सो वोल्टेज क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है. पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है. इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए रेडी है, तुम उसको करने नहीं दे रहे हो. सो दैट मीन्स यू आर मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस. हायर द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर विल बी द chances of a current which can flow, charges which can flow. मतलब ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि करंट ना कम फ्लो हो. अब करंट फ्लो करने लगेगा तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होता जाएगा, इसका मतलब है सारे चार्जेस फ्लो कर गए. समझ में आया? तो इसलिए स्टेप अप करना जरूरी है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे. पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा, करंट जब ही जितना चाहिए उतना सप्लाई हो सकता है. दैट इज द आइडिया. सो जनरली क्या होता है पता है? दीज पीपल, द जनरेटिंग स्टेशन
people who supply electrical energy, they have stored or they have gathered a lot of electrical energy at their power plant, and what they do is they maintain that potential difference. So by maintaining the potential difference, they ensure that जब भी ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जैसे जैसे ही शाम होती है, 7 बजते हैं, तो सबकी लाइटें चालू हो जाती हैं। तो जितनी एनर्जी अभी यूज हो रही है उससे डबल एनर्जी यूज होगी तब, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी होगी, घर की लाइट होगी। यहाँ तो हम लोग इंडोर लाइट्स यूज कर रहे हैं मॉर्निंग में, बट शाम को तो सब लोग यूज करते हैं, घर पे तो अभी यूज नहीं हो रही है। तो शाम को क्या होता है, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सडनली स्पाइक्ड अप। तो उससे क्या होता है, जो हाई वोल्टेज जनरेट हुआ है ना, वो धीरे धीरे कम होगा। और ये सप्लाई क्या कर रहा है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो करंट फ्लो करने लगेगा। फिर वो एनर्जी सप्लाई को पूरा करने के लिए जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आई है, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेटिंग स्टेशन या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होगा या तो तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट होगा। वो और कोल बर्न करके और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन। बट जैसे ही लगता है लोगों को कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो उसको वापस मेंटेन करना पड़ता है। सो दे जनरेट मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सपोज कभी पावर आउट हो गया, तो पावर आउटेज हो गया, तो ग्रिड फेल हो गई ऐसा कुछ, तो क्या होगा, सप्लाई एकदम से बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई यूज नहीं कर पाएगा। कुछ तो ट्रांसफार्मर कहीं जल गया। पता है खारघर की एक बार पूरे मुंबई की लाइट चली गई थी। यू नो दैट एंड हैपेंड लास्ट ईयर 2020 में ही हुआ था, आई रिमेम्बर, फॉर कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर्स, 6 or 9 hours और मे बी समथिंग लाइक दैट। पूरे मुंबई में लाइट नहीं। तो ऐसा जब होता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, और लेकिन सप्लाई कोई नहीं ले रहा है, तभी होता है ये हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस। इट इज पॉसिबल दैट वहां पे फिर कोई बड़ा माल फंक्शन हो जाए। So it is always, it has to be maintained that potential difference according to demand and supply को maintain किया जाए। So that's a little complex theory of supply of electricity। तुम लोगों को इतना नहीं है, ऊपर ऊपर से information दी गई है, but the idea is to get you the information from the generating station to consumer। electricity कैसे आती है, तुम्हें यही याद रखना है कि जनरेट होती है 11 किलो वोल्ट पे, सप्लाई होती है हायर वोल्टेज पे, टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस। इसके बाद उन्होंने बोला है रिलेशन है P इज इक्वल टू वी आई, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मतलब इससे पहले 8th चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सो फॉर अ गिवन पावर करंट इज P बाय V, हायर द वोल्टेज लोअर इज द करंट, है ना, हायर द वोल्टेज lower is the current for a given power. Thus, by supplying given electric power at high voltage, current becomes low and therefore loss of energy due to heating, which is I square RT। ये भी मैंने बताया था 8th चैप्टर में। ये किसका फॉर्मूला है, I square RT, हीट का फॉर्मूला है, H is equal to I square RT। You need a revision for 8th chapter, desperate revision। सो जो कल तुमने नोट्स बनाई ना, वो 8th की बनानी आज, और इन सबको साथ में लेके। इनका इसका देखा कल क्या किया इसने, बाजू में बैठ के एक कांड कर दिया इसने, उसने पूरा बोर्ड भर दिया। एंड इट हैज रेडियो एक्टिविटी, इट हैज कैलोरीमेट्री, हाँ 2 चैप्टर पूरे, पूरी नोट्स शॉर्ट में। दैट वाज अमेजिंग। अभी भी है, ऐसे ही रखा है मैंने उसको। हाँ तो उसको थोड़ी मिटाऊंगा मैं, तुम ही मिटाओगी क्योंकि तुमने किया है। So you have to do the same thing for current electricity and household today after the class with them. So some part you will divide with them and you guys will do it. Okay? Because you need to remember these formula. So first thing what they are saying is I is equal to P by V, मतलब for a given power voltage जितना हाई रहेगा करंट उतना कम रहेगा, करंट जितना कम रहेगा आई स्क्वायर आर टी उतना कम रहेगा, और आई स्क्वायर आर टी इज द हीट, मतलब हीट लॉस कम होगा। 10 ये इंपॉर्टेंट है,
Thus, the alternating voltage generated is first stepped up from 11 kilovolt to 132 kilovolt. What is 132 kilovolt? 132,000 वोल्ट, मतलब 1,32,000 वोल्ट पे उसको सप्लाई किया जाता है. जस्ट इमेजिन 11,000 से 1,32,000 वोल्ट पे उसको स्टेप अप करके फिर सप्लाई करते हैं एट द जनरेटिंग स्टेशन और कॉल्ड ग्रिड सब स्टेशन. यू नो वेर इज दिस ग्रिड सब स्टेशन इन खारगर? वो उत्सव चौक वाला रोड है ना, जहां से उत्सव चौक की तरफ जाते हैं, सेक्टर 22 उत्सव चौक. तुम्हारे when you are going towards Utsav Chowk from sector 20, the straight road, on your right you have this Kesar Harmony and then Regency Garden, and then आगे straight road आता है, खाली road है, एक माता का मंदिर है, you know that, very famous. And then उसके पीछे if you see there is full electricity का grid substation, that is city substation खारगर का. I think खारगर का है या खारगर पनवेल का है शायद वो, या पूरे नवी मुंबई का भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, सो दैट इज ग्रिड सबस्टेशन. ग्रिड सबस्टेशन पे कितने वोल्ट पे आता है इलेक्ट्रिक पावर? 132 किलो वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट पे उधर पावर रिसीव होता है. कहाँ से रिसीव होता है? जनरेटिंग स्टेशन से. मुंबई में जनरेटिंग स्टेशन किधर है? मुंबई के बाहर? वी डोंट नो, वी डोंट नो. पता लगाओ, ठीक है, थोड़ा गूगल पे जाके पता लगाओ वेयर इज द जनरेटिंग स्टेशन, तो हमको पता चले. तो यू माइट हैव सीन, जब तुम ट्रैवल करते हो हाईवे पे, तो यू माइट हैव सीन दोज ह्यूज ट्रांसमिशन लाइंस, लंबे लंबे टावर्स होते हैं और उस पर पूरे वायर्स लगे होते हैं. ये कहाँ से आता है ये पता लगाना है, बट उसका पीछा नहीं करना है, गूगल करना है. ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कार लेके मैं आज पता लगा के रहूंगा कहाँ से आ रहा है ये वायर बड़ा लंबा लंबा, नहीं, अपने को गूगल करके मिल जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जनरेट हो रहा है और यहाँ पे रिसीव हो रहा है 132 किलो वोल्ट पे. ठीक है, यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये स्टेप करते हैं, इसको स्टेप अप करते हैं. इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सबस्टेशन. एट द मेन सबस्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन फ्रॉम 132 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट. अब उसको, क्योंकि हम अब उसको यूज करना चाहते हैं, 132 किलो वोल्ट पे हम यूज नहीं कर सकते. 132 किलो वोल्ट को संभालने वाला जो वायर होता है ना, केबल, दैट इज दिस थिक. ठीक है, दिस थिक, शायद इससे भी थिक हो सकता है वो केबल जिसपे बर्ड बैठते हैं और नीचे पॉटी करते हैं. हाँ, वही वाला, वही केबल, बट दैट्स वेरी हाई. सो इतना बड़ा कोई केबल तो आया नहीं यहाँ पे, छोटे से दो वायर आए हैं, मतलब डेफिनेटली वोल्टेज इतना ज्यादा नहीं है. मतलब वोल्टेज को क्या किया है? स्टेप डाउन किया है. सो 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट पे लाते हैं स्टेप डाउन करके, using step down transformer, and then it is transmitted to the heavy industries and intermediate substation. So बीच में आ जाता है तुम्हारा तलोजा. तलोजा में भी there is MIDC. MIDC पता है क्या होता है? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज है. इफ यू बीन टू दैट साइड, इट्स वेरी सैड साइड, नोबडी गोज देयर, नोबडी केयर्स. हाँ, लेकिन रोज सुबह वो लोग याद दिलाते हैं हमें कि हम हैं यहाँ पे, by emitting some poisonous gases which you smell in the air every morning. Have you smelled it? Sir, Yes, who has smelled it? Priyam, have you sir, smelled that gases, those gases? yes, sir, Yeah, so that's coming from industrial area which is very near to us. That is Taloja MIDC. तो sir, yes, please. सर MIDC का एक पावर जनरेटिंग स्टेशन भी है. MIDC का खुद का पावर जनरेटिंग स्टेशन भी है. प्रियम, कैसे पता तेरे को प्रियम? सर अभी गूगल किया था मैंने, वो आपने बोला था, मैंने गूगल किया तो नियरेस्ट खारगर से वही है MIDC. बट मुझे लगता है कि वो MIDC का जो है पावर जनरेटिंग स्टेशन, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए है या वो हमको भी सप्लाई करता है? सर नहीं पता. हाँ, no वो पता idea. लगाना पड़ेगा. कोई Yes, बात sir. नहीं. तो इंडस्ट्री में पहले ये पावर सप्लाई होता है 33 किलो वोल्ट पे. इसको बोलते हैं हेवी इंडस्ट्रीज. हेवी इंडस्ट्रीज आर ऑफ कोर्स industries which are huge, which has huge cranes and machines and girders and
ह्यूज इक्विपमेंट्स जिसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगता है परफॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे 33 किलो वोल्ट वो लोग भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद 33 किलो वोल्ट जो बचा हुआ है, मतलब बाकी का 33 किलो वोल्ट, ऐसा नहीं है कि 33 किलो वोल्ट को भेज दिया तो अपने पास क्या बचेगा, कुछ बचेगा, 33 किलो वोल्ट ही बचेगा। बाकी के 33 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन करके 11 किलो वोल्ट पे लेके आते हैं। 11 किलो वोल्ट इज द सेम वोल्टेज एट विच इट वाज जनरेटेड एट द जनरे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ट्रांसफॉर्मर है शायद तुमको इस पार्ट में नहीं है तो है, मतलब चैप्टर में तो है डेफिनेटली। नहीं, इसमें नहीं है, इसके बाद वाले में मोटर और जनरेटर वो वाला चैप्टर है तुमको। हाँ, उसमें ट्रांसफॉर्मर आई शो यू हाउ इट वर्क्स आल्सो। ठीक है, सो देखो देखो यहाँ पे देखो, तो 11 किलो वोल्ट पे स्टेप डाउन किया, स्टेप डाउन करके 11 किलो वोल्ट को लाइट इंडस्ट्रीज में भेज दिया। लाइट इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते, 50 to 100 पीपल काम करते हैं, एंड इट्स नॉट वेरी बिग मशीन, स्मॉल मशीन्स आर देयर बट दे रिक्वायर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पावर। सो 11 किलो वोल्ट लाइट इंडस्ट्रीज में चला जाता है, बाकी का 11 किलो वोल्ट को फर्दर स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे लेके आते हैं सिटी सबस्टेशन में। एक्चुअली जो मैं बोल रहा था ग्रिड सबस्टेशन, दैट इज नॉट दैट खारगर वाला, दैट इज अ सिटी सबस्टेशन, क्योंकि वो सिटी के अंदर है, और सिटी के अंदर जो सप्लाई होता है ना, दैट इज नॉर्मली एट 220 वोल्ट्स। तो सिटी सबस्टेशन क्या करता है, 11 किलो वोल्ट को 220 वोल्ट में लेके आता है स्टेप डाउन करके। वहां पे ही सारे मशीन्स होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं सिटी सबस्टेशन के अंदर, जो जितना रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करके आगे सप्लाई कर देते हैं। तो वहां से अंडरग्राउंड वे में नौ मुंबई, नवी मुंबई, वी आर वी आर काउंटेड एज मेगा सिटीज और स्मार्ट सिटीज और वट एवर। यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे कि कोई भी ओवरहेड वायर्स नहीं है जैसे छोटे सिटीज में होता है। इफ यू माइट हैव गॉन टू सम स्मॉलर सिटीज, कोई गया है स्मॉलर सिटी में, छोटे सिटी का नाम बताओ जहां तुम गए हो। अरे गए तो होगे, कहीं तो ट्रैवल किया होगा ना जनरली, रिसेंटली गांव। नहीं नहीं नहीं, वो दैट इज नॉट, दैट इज ऑल मुंबई एरिया, दैट्स ऑल मुंबई। मुंबई से बाहर कोई छोटे सिटी का नाम बताओ जहां पे कोई गया है। नेटिव कहाँ है तुम्हारा नेटिव? सातारा। सातारा में इफ यू गो इनसाइड द सिटी यू सी ओवरहेड वायर्स, ऐसे बहुत सारे वायर्स होते हैं ओवरहेड, बीच में खंबा होता है और बहुत सारे वायर्स होते हैं, लुक्स वेरी क्रीपी एंड वेरी मेसी। सर यस। सर वो रोड्स के साइड में जो ऐसे ऐसे पोल लगाते हैं वो वाला? हाँ, रोड के साइड में पोल होते हैं, उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं। यस सर, या सर सो देखा है। स्मॉल सिटीज में तो बहुत ही कॉमन है ये। हाँ, दिल्ली में भी है, पुरानी दिल्ली में। यू विल फाइंड दैट इन पुरानी दिल्ली, नॉट इन अदर एरियाज। डेवलप्ड एरियाज में नहीं है वो, हमारे एरिया में और डेवलप्ड एरियाज में, डेवलप्ड सिटीज में नया एक ट्रेंड है, नॉट इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट इज अ न्यू मेथड दैट दे विल सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स. So you might see those, sometimes you might see those huge wheel kind of things at the side of the road. वो पड़े रहते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एनाकोंडा जैसा वायर ऐसा रहता है, बहुत मोटा रहता है उसको, वो वायर को बोलो पूरा जमीन के अंदर डाल के दे मेक अंडरग्राउंड पावर सप्लाई लाइन। तो यहाँ पे सारे अंडरग्राउंड ही है। वो अंडरग्राउंड पावर सप्लाई लाइन से वो जो ब्लैक कलर का बड़ा केबल बाहर आता है, वो हमारे रेड कलर के बॉक्स में जाता है जहाँ पे वो खोपड़ी बनी है, उससे फिर वो अंडरग्राउंड लेके, उससे लाइन लेके तुम्हारे बिल्डिंग में लेके आता है। सो इट्स ऑल अंडरग्राउंड, वी कांट सी इट, बट इन स्मॉल सिटीज यू विल बी एबल टू सी कि वो कैसे केबल सिटी सबस्टेशन से निकल के तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे घर में आ रहा है। इट्स ऑल ओवरहेड। सो ओवरहेड इज नॉट गुड बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, कभी जोर से बारिश आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो वो गिर जाएगा, और जिसके ऊपर गिरेगा वो तो गया, खत्म, क्योंकि हाई वोल्टेज। ठीक है, सो इट्स वेरी डेंजरस ओवरहेड थिंग, इसलिए अंडरग्राउंड कर दिया अभी सब कुछ। तो दैट इज द थिंग। तो सिटी सबस्टेशन पे हम पहुंच गए, सिटी सबस्टेशन से कंज्यूमर के घर पे आ जाता है वो।
So you have to remember this flow chart. Power generated at 11 kilovolt, grid substation पे स्टेप अप करके 132 किलोवोल्ट पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है टू मेन सबस्टेशन एट 33 किलोवोल्ट। उसको स्टेप डाउन करते हैं, फिर उससे हैवी इंडस्ट्री में भेजते हैं। बाकी का 33 किलोवोल्ट को स्टेप डाउन करके बाकी के 33 किलोवोल्ट को इंटरमीडिएट सबस्टेशन में भेजते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन करते हैं अप टू 11 किलोवोल्ट। वहाँ से लाइट इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ से बाकी का 11 किलोवोल्ट को सिटी सबस्टेशन में भेजते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन करते हैं 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट डायरेक्टली हमारे घर पे आता है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर पे। अब यहाँ पे जो वो लोग ने दे whatever they have explained is in terms of a small independent house, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। इंडिपेंडेंट हाउस इज लाइक अ बंगलो, जिनका खुद का लैंड होता है और खुद का इंडिपेंडेंट घर होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता है। वी लिव्ड इन शेयर्ड अपार्टमेंट्स, दैट मीन्स देर इज अ बिल्डिंग एंड देर आर मेनी फ्लैट्स, सो देर इज ओनली अ सिंगल मीटर रूम जहाँ से सबके घर पे ये सप्लाई जाता है। बट यहाँ पे जो वो लोग ने डिस्क्राइब किया दैट इज फॉर अ सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस। सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस में डायरेक्टली जो केबल आता है वो तुम्हारे मीटर रूम में जाता है। ठीक है, मीटर रूम में कहाँ से उसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है वो दिखाया है यहाँ पे। तुम्हारे घर के लिए शायद कुछ और हो सकता है, यहाँ हमारे घरों के लिए, बट दिस इज जनरली व्हाट हैपेंस इन यू कैन से स्मॉल सिटीज। ठीक है, सो सब स्टेशन से इलेक्ट्रिक पोल से तुम्हारे घर के अंदर 3 केबल आते हैं। ये तीनों केबल का नाम है लाइव, न्यूट्रल और अर्थ केबल। जनरली अर्थ केबल जो है वो वहां से बाहर से नहीं आता है, अर्थ केबल तुम्हारे घर के नीचे ही शुरू होता है। सो ये अर्थिंग केबल या जो अर्थ केबल है उसका स्टोरी ये है कि ग्राउंड में एक बहुत ही डीप होल बनाते हैं वो लोग, और वो होल में नीचे एक कॉपर का प्लेट डालते हैं, और कॉपर के प्लेट के साथ एक कॉपर का थिक रॉड या वायर को वेल्ड कर देते हैं नीचे। ठीक है, वो वायर ऊपर आता है, उसको इंसुलेट करते हैं, एंड दैट इज योर अर्थ वायर। ठीक है, और ये जो ग्राउंड के अंदर जो होल किया है उसके अंदर दे पुट कंडक्टिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, पीरियोडिकली उसमें सॉल्ट और वाटर ऐड करते रहते हैं। सो क्या होगा कि जो एक्सेस करंट तुम्हारे घर के अंदर की सर्किट में फ्लो हो रहा है दैट विल नॉट डैमेज योर हाउस होल्ड सर्किट, दैट विल डायरेक्टली गो इनटू द अर्थ। और अर्थ क्या करेगा, अर्थ सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेता है, बिकॉज अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जितना भी एक्सेस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो सारा अर्थ में चला जाता है। इसलिए अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। ये अर्थिंग का आगे भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इसको, हाउ इट इज एक्चुअली पुट टू यूज और हाउ इट सेव्स योर लाइफ, अर्थिंग। ठीक है, इसका आगे मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि लाइव और न्यूट्रल वायर सिटी सबस्टेशन से आता है, मीटर रूम के नीचे से अर्थ वायर भी इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सबसे पहले कंपनी फ्यूज या जो तुम्हारा MSEB या जो भी बोले हम, हमारा जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उनका एक फ्यूज लगा होता है वाइट कलर का। नहीं, नो, सो दैट इज MCB, miniature circuit breaker. This is company fuse. This is old fashioned porcelain fuse with the हाँ मेल्ट वाला फ्यूज, मेल्ट वाला फ्यूज है, इतना बड़ा होता है बॉक्स जैसा, वो लगा होता है। जब तुम बिल नहीं भरते हो तो ये कंपनी वाले आते हैं, वो फ्यूज के ऊपर का जो कवर है वो निकाल के चले जाते हैं लेके, कभी कभी साथ में उधर ही रख के चले जाते हैं निकाल के। सो इसका मतलब ये है कि अगर तुम बिल नहीं भरोगे तो वो लोग फ्यूज निकाल लेंगे। फ्यूज निकाल लेंगे तो यू कैन नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एज सुन एज दे टेक आउट द फ्यूज द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो वो कंपनी फ्यूज लगा होता है। जनरली ये वो थ्रेटनिंग या धमकी देने के लिए नहीं है, दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या करता है, अगर कभी सिटी सबस्टेशन से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है और तुम्हारे घर पे वो आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम्हारे सारे इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले पास होती है कंपनी फ्यूज से, और कंपनी फ्यूज में इसके अंदर जो
छोटा सा एक टिन और लेड के अलॉय का एक वायर लगा होता है, जैसे ही उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करता है उसमें तुरंत वो हीट अप हो जाता है और मेल्ट हो जाता है. So what it does is it does not allow the current to flow ahead into the house, into the sensitive equipments. ठीक है, नहीं तो तुम्हारा टीवी, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें कनेक्टेड है सब खराब हो जाएगी, एसी सब कुछ ब्लो हो जाएगा. सो वो नहीं होने के लिए दे अटैच दिस कंपनी फ्यूज इनटू द केबल. अच्छा, कंपनी फ्यूज अटैच करने के बाद आगे आता है KWH मीटर. KWH इज किलो वॉट आर. ये हमने वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा था. किलो वॉट आर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, सो किलो वॉट आर मीटर लगा होता है. मीटर मीटर तुम सबने देखा होगा. अगर नहीं देखा, अपने बिल्डिंग के नीचे एक मीटर रूम रहता है, यस सर. उसमें बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे बिल्डिंग का सबसे अंधेरा कोना है. ठीक है, यस सर. और वॉचमैन उसको गार्ड करता है. वॉचमैन पता नहीं क्या, मतलब अंदर खजाना है. गार्ड नहीं करता है, अजीब वॉचमैन है भाई. निकाल दो नहीं उसको, करता सर. निकाल दो उसको, सर निकाल हाइड दो. एंड सीक खेलने के लिए वो एक जगह रहता है. डोंट डोंट ही इज सेइंग हाइड एंड सीक खेलने के लिए वो एक जगह है भाई. सर मैं नहीं, मेरे बिल्डिंग के प्लीज बच्चे हैं सर. प्लीज नेवर डू दैट, बिकॉज वहां पे हाई वोल्टेज वायर्स है, केबल्स, और वो नीचे ऐसे बिछे हुए होते हैं. ठीक है, सो डोंट एवर स्टेप इनटू दैट, बिकॉज दैट्स अ मोस्ट डेंजरस प्लेस. हाँ हाँ, मतलब मोस्ट सोसाइटीज में वहां पे लॉक लगा रहता है और वो वॉचमैन चाबी नहीं देता है उसका. सर हमारा गेट वहाँ पे खुला रहता है. यस, सो यू हैव टू कंप्लेन टू द सेक्रेटरी. उसको बोलो मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, इसको हम लोग ओपन नहीं रख सकते. यस सर. सर अभी या कोई नहीं खेलता वहाँ पे. यस, तो वहां पे मीटर्स लगे होते हैं सारे. अब तो सारे डिजिटल मीटर्स आ गए, तो उसमें तुम देख भी पाते हो कि तुम्हारा मीटर वर्किंग है या नहीं. कभी कभी तुम्हारा ट्रिप हो जाता है, लाइट चला जाता है, तो मम्मी भेजती है नीचे देख के मीटर रूम में. सबके साथ हुआ है ये. हाँ, वॉचमैन नो सर. वॉचमैन बोला क्या है, क्यों चाहिए, क्या चाबी, वो बहुत इंक्वायरी करता है. हाँ, और फिर ही भेजता है वो उस. हाँ, उस पे तो सारे छोटे छोटे एमसीबीज होते हैं, बट कभी कभी वो सारे ऑन है लेकिन फिर भी लाइट नहीं चल रहा है, तो देन यू टू गो बिलो इन द मीटर रूम एंड देन चेक देयर कि वहां से तो ट्रिप नहीं हुआ है. तो कभी कभी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जब फ्लो हो जाता है तो वो ट्रिप हो जाता है. टू सेव द वोल्टेज फ्लक्चुएशन से तुम्हारे अप्लायंसेस को सेव करने के लिए वो एमसीबी लगाते हैं. ठीक है, तो ये मीटर हो गया. मीटर को अर्थ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तीनों वायर, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ. ये जाते हैं मेन स्विच में. तो तुम्हारे मीटर रूम में तुमने देखा होगा कि ऐसे ब्लैक कलर का ऐसा नॉब रहता है, उसके ऊपर स्विच रहती है, जिसको देख के मन करता है इसको हम लोग एक बार तो कर ही दे. बस ऐसा मन बहुत करता है, लेकिन कर नहीं सकते हम लोग, बिकॉज पूरे बिल्डिंग की लाइट उससे गुल हो सकती है. लिफ्ट में कोई अटक गया तो खत्म. हाँ, 2 सेकंड के लिए. ओके, दैट इज हॉरिबल मान, रियली. तो मेन स्विच है, तो मेन स्विच से आगे बात बढ़ती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इज योर घर के कॉरिडोर में या एंट्रेंस के सामने जस्ट एक छोटा सा डोर होता है वॉल के ऊपर, उसको अगर खोलोगे तो एमसीबीज लगी होती है सारी. दैट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विच दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वहां से यू कैन कंट्रोल द ऑल द लाइट्स ऑफ अ सिंगल रूम. एक एमसीबी होती है बाथरूम के लिए, एक होती है बाथरूम की लाइट्स के लिए, एक होती है बाथरूम के गीजर के लिए. ऐसे सारे बाथरूम्स की लाइट्स और गीजर की अलग अलग एमसीबी. फिर एक होती है तुम्हारे बेडरूम के लिए, एक होती है हॉल रूम के लिए, एक सिर्फ एसी की होती है, 3-4 एसी जितने भी है उसके लिए. एक किचन के रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन के पॉइंट के लिए होती है एमसीबी. सो सारे अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग एमसीबीज है. हाँ, जिसका ज्यादा वोल्टेज है उसका जो एमसीबी का रेटिंग है वो अलग रहता है. मतलब वो हायर वोल्टेज वाली, हायर करंट रेटिंग, पावर रेटिंग वाली एमसीबी होती है. तो एमसीबी भी अगर तुम जाओगे ये तुम्हारे हार्डवेयर के शॉप पे और बोलोगे भैया एक एमसीबी देना, तो वो पूछता है कि कितने का चाहिए, कितने का चाहिए, कितने वोल्ट का चाहिए, मतलब कितना पावर रेटिंग क्या है. फिर तुम्हें बोलना पड़ता है कि मेरे को एसी के लिए चाहिए, तो वो तुम्हें फिर 16 एम्पियर का देता है.
16 एम्पियर या 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर्स का आता है या वोल्टेज का आता है। जो नहीं, वोल्टेज तो उतना ही रहता है, एम्पियर अलग अलग रहता है। एम्पियर मतलब करंट, क्योंकि हर एक अप्लायंस अलग अलग करंट ड्रॉ करता है, तो उसके लिए उस वैल्यू का एमसीबी तुम्हें अटैच करना जरूरी है। ठीक है, सो दैट इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू योर हाउस। देन वी कम इनसाइड द हाउस। इनसाइड द हाउस वी आर डूइंग रिंग सिस्टम। एक ट्री सिस्टम भी आता था पहले, लेकिन अब वो ट्री सिस्टम कोई करता नहीं, अब सब रिंग सिस्टम में होता है। तो रिंग सिस्टम कैसा है कि जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहां से सारे जो केबल्स है, मतलब 3 केबल है मेन, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीनों केबल हर रूम में से गुजरेंगे। हर रूम में ये तीनों केबल जाएंगे और तीनों पूरा रिंग बना के वापस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाएंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ रिंग अटैच्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जस्ट लाइक विजिबल ओवर हियर। एक रिंग है यहाँ पे, सर्कुलर रिंग नहीं है, स्क्वायर रिंग है, ठीक है, जो तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के तीनों केबल के साथ अटैच्ड है। अब तुम देखोगे तुम्हारे रूम में के ऊपर एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां से वो वायर निकल रहा है ना, वैसा रहता है, लेकिन वायर नहीं है वो, इट इज जस्ट अ पॉइंट। पॉइंट मतलब इट्स जस्ट अ प्लेट फिक्स्ड ऑन द वॉल। तुम्हारे रूम में कहीं ना कहीं ऊपर मिल जाएगा तुम्हें, इट हैज होल्स या। सो अगर उसको खोलोगे तो यू विल सी 3 वायर्स पासिंग, सो दैट इज दैट रिंग विच इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर रूम। अगर तुम्हें उस रूम में कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना है, कोई बल्ब लगाना है या कोई एक्स्ट्रा एसी का पॉइंट लेना है या कोई दूसरा बोर्ड बनाना है, तुम्हें स्विच बोर्ड लगाना है, तो तुम वहीं से यू कैन ड्रॉ द वायर्स एंड यू कैन मेक द बोर्ड। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ you have to get the line and fix whatever extra instruments you need. Generally जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो लोग पूरे पॉइंट सब बना के देते हैं तुम्हें, बट इन केस सम पीपल, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे टीवी वहां पे चाहिए, तो मुझे वहां पे पॉइंट लेना पड़ेगा, तो उससे मैं वो वाले रिंग सिस्टम के पॉइंट से मैं पॉइंट खींच के आई कैन गिव अ एक्स्ट्रा प्लग एंड अ सॉकेट। ठीक है, सो दैट्स योर रिंग सिस्टम। इसके साथ सारे अप्लायंस डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। इसका फायदा ये है कि ये जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहां पे जो 3 केबल आ रहे हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ, इसमें लाइव जो केबल है उसका वोल्टेज, उसका जो पोटेंशियल है दैट इज 220 वोल्ट, और न्यूट्रल का पोटेंशियल है 0। अर्थ इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, बाकी ये दोनों जो वायर है, लाइव और न्यूट्रल, यही इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को संभालते हैं। तो यू कैन से दैट द बेनिफिट ऑफ दिस रिंग सिस्टम इज दैट एवरी अप्लायंस कनेक्टेड इन द रिंग सिस्टम डायरेक्टली गेट्स द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। नहीं तो क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज। यस, नहीं ले सकते, उसके लिए तुम्हें उसके घर पे खड्डा करके उसका वायर ढूंढना पड़ेगा, एंड नोबडी कैन डू दैट। दैट्स अ वेरी पथेटिक आइडिया। इसके लिए सबसे पहले, इसके लिए तुम्हारे बाजू वाले घर की वॉल तुम्हारे घर के वॉल के साथ शेयर होनी चाहिए। हो रहा है ऐसा? होता है ऐसा? अच्छा, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसके घर पे वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ है। उसके घर जाके देख के फोटो वोटो ले लेना, और फिर मैं क्या सिखा रहा हूँ ये, हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। इसको पावर थेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, और पावर थेफ्ट इज अ ऑफेंस। तुम्हें मालूम पड़ा? वो देख रहे, मेरा बिल डबल कैसे हो गया यार, ये तो दो घरों का बिल है यार, ये तो हर महीने सर मेरे को 5000 आता था, आज 15000 आ रहा है। कोई तो समझ में आएगा यार, ऐसा मत करो। सर शी हैज समथिंग इन हर माइंड बट इट्स ओके, वी विल। हाँ, यही ये चैप्टर, ये एजुकेशन का मतलब ही है कि ऐसे ख्याल को हम निकाले तुम्हारे दिमाग से। ठीक है, सो प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ऐसा है क्या कि एक वॉल से दो अलग अलग मतलब फ्लैट में पावर दे रहे हैं, तो दे सकते हैं, अगर दोनों फ्लैट तुम्हारे हैं तो।
नहीं सर, जैसे एक फ्लैट लेफ्ट में, एक फ्लैट राइट में है, तो बीच में से वायर्स जा रहे हैं हो सकता है, और यस इट्स दोनों। पॉसिबल, बट ये जो वायर्स होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी डीप इनसाइड द वॉल, दे आर वेरी नियर टू द सरफेस। सो यस सर। या वो लोग जो वायर अंदर डालते हैं, या इट्स पॉसिबल दैट दोनों फ्लैट के वायर्स दे आर वेरी नियर टू ईच अदर इनसाइड द वॉल, इट्स पॉसिबल। यस सर। सो इसके एडवांटेजेस है रिंग सिस्टम के। In the ring system, current from the mains can reach to an individual appliance through two separate paths. Yes. देखो, सपोज ये फैन है यहाँ पे, ठीक है, ये फैन का फ्यूज या स्विच या जो भी है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया, रिंग सिस्टम में वायर कट हो गया या कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वायर जल गया, तो करंट यहां से भी तो जा सकता है फैन में, नीचे से। समझ में आया तुमको? सो करंट कैन रीच द अप्लायंस थ्रू टू पाथ्स, देयर आर टू पाथ्स फॉर द करंट टू रीच एन अप्लायंस, दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ रिंग सिस्टम। खराब हो गए तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। डेफिनेटली पूरे घर की नहीं, बट हाँ वो जगह पे जहाँ पे खराब हुआ है वो नहीं चलेगा, दूसरे लोगों को तो मिलेगा ना करंट। हाँ लेकिन यहाँ से ही अगर ब्रेक हो गया यहाँ से तो खराब हो गया, फिर तुम्हें रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन सपोज इश्यू इधर है, तो ये क्यों इसमें प्रॉब्लम आएगा, ये तो जलेगा ना, ये चलेगा। तो इसमें वो पैरेलल वाला नहीं है, नहीं, जो सीरीज ये पैरेलल ही है, ये पैरेलल ही है, लेकिन पैरेलल इन द शेप ऑफ अ रिंग। यू अंडरस्टैंड वाई रिंग? बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स। एक तो दो पाथ्स है, ठीक है, वायर रिक्वायर्ड फॉर मेन रिंग इज of lower current carrying capacity than which would be required from a direct connection to the mains. This considerably reduces the cost of wiring. मतलब हर एक अप्लायंस को के पास दो रास्ते हैं सप्लाई लेने के लिए, और हर एक अप्लायंस मेन से इफेक्टिवली एक थिक वायर से कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो जो तीन वायर हर रूम से गुजरते हैं, दे आर वेरी थिक, थिक वायर्स होते हैं वो। तो तुम्हें मेन से वापस थिक वायरिंग का लाइन लेने का जरूरत नहीं है, यू हैव दैट वायर पासिंग थ्रू योर रूम, so you can draw the current through that itself if you want. Each appliance has a separate fuse in ring system. Therefore, if due to some fault the fuse of one appliance burns, it does not affect the operation of the other appliance. कभी किसी का फ्यूज जल गया तो दूसरे अप्लायंस पे इफेक्ट नहीं होगा। In this system, all the plugs and sockets used can be of the same size, but each socket should have its own fuse of rating suitable for the appliance to be connected with it. हर एक अप्लायंस की अपनी अपनी स्विच होती है, अपने अपने फ्यूजेस होते हैं, और जितना तुम्हें, जैसे एसी है तो एसी के लिए 16 एम्पियर का मुझे स्विच या फिर एमसीबी चाहिए, तो वो मैं अलग से लगा सकता हूँ। इट्स नॉट दैट कि हर एक रूम का सिर्फ एक स्विच है, उसको मैं ऑन करूंगा सब ऑन हो जाएगा। It's not like that. So you can connect all the appliances separately to the ring system. While installing a new appliance in a room, a new line up to the distribution box is not required, but can be directly connected to the ring circuit in that room, जो मैंने तुम्हें बताया। The care is taken that total current drawn from mains in the ring circuit does not exceed the rating of the main fuse, that is 30 एम्पियर। जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मेन फ्यूज होता है ना, एक बड़ी वाली एमसीबी होती है, दैट इज 30 एम्पियर। तो तुम्हें कोई ऐसा अप्लायंस कनेक्ट नहीं करना चाहिए जिसका करंट रेटिंग 30 एम्पियर से भी ज़्यादा है। जनरली हम घर पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो या गीज़र हो या वॉशिंग मशीन हो, वो सब 30 एम्पियर से नीचे वाले रेटिंग के हैं, तो तुम उसको उसके पर्टिकुलर जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। बट कोई अगर इंडस्ट्री से हैवी मशीन लेके आता है अपने रूम में लगाने के लिए, कुछ लोग करते हैं ऐसा, घर पे फैक्ट्री बना देते हैं एक रूम में, सब उनको लगता है किसी को समझेगा नहीं, लेकिन वो कितना करंट ड्रॉ करेगा वो मशीन, मोर देन 30 एम्पियर, तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा, जैसे ही ऑन करेगा फ्यूज ब्लो हो जाएगा। so that is not made to be installed in residential areas, that is made to be installed in industrial areas. ये सब वही चलता है, इफ यू हैव सीन, ये जनरली कुछ अंदर वाले रोड्स पे कुछ शॉप्स होती है जहाँ पे वो लोग ग्रिल बनाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, मेटल का कटिंग करते हैं, वो सारे जो मशीन्स हैं दे जनरली रिक्वायर हाई वोल्टेज। वेल्डिंग मशीन तो काफ़ी हाई वोल्टेज चाहिए, फिर भी वो लोग इसमें वो लोग चलाते हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, बट दैट्स नॉट सेफ फॉर द होल बिल्डिंग।
connection of all appliances, bulb, fan, socket with the mains. We note that all electrical appliances, bulb, fan, socket, etc. are connected in parallel with the mains. मतलब ring circuit क्या है? Parallel connection है. In the live wire, before each appliance there is a separate switch and a separate fuse connected in series. और इसका advantage क्या है कि each appliance gets 220 volt supply for its normal working, and each appliance operates independently without being affected whether the other appliance are operated or not. वो है यहाँ पे टू वे स्विच बोलते हैं इसको. दैट इज देयर इन द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ तुमको टू वे स्विच. तो टू वे स्विच का कैसा है, जस्ट लिसन मी हियर. मतलब मैं बताऊंगा उसके बारे में एक्स्ट्रा, बट लाइक आई एंटर द रूम बट देर इज नो लाइट, सो देर इज अ switch right next to the door. So I on the light, I go inside, I lie down on the bed, then I don't want to get up because I'm very lazy. And also I'm afraid of dark. So if I get up, close the switch because I want to go to sleep, I cannot go back to the bed because it's dark. एक बंगलो था ना, मतलब मेरे जो नेटिव प्लेस है ना वहाँ पे तो स्टेयरकेस पे से दोनों जगह लाइट्स थी. Staircase wiring, yes. मतलब वो गए थे लाइट ऑन कर करके, ठीक है, नीचे से भी स्विच ऑफ करने का भी था स्टेयर्स का. वो आए, वो उधर से मैंने लाइट बंद कर दी, वो आए लाइट ऑन करे, मैं जैसे बंद करी तब Oh, इतना डर गया नीचे आए. prank. Yeah, so that is that switch. डांटा मतलब पकड़ी कैसे गई यार तू? कोई तो आएगा. अच्छा अच्छा, ओके. तब तक निकल जाने का वहां से. फिर दूसरे दिन सेम प्रैंक. उनको पक्का यकीन होना चाहिए यहाँ पे तो भूत है ही है ना. फिर उनको बाद में बताने का, बेटा ये भूत नहीं है, फिजिक्स है. जो तुम्हें 9, 10, 11, 12 में भी डराएगा. छोटे थे वो लोग. हाँ, वेरी बैड एग्जाम्पल. तो I need two switches, one near my bed and one near the door. So if I connect them in that kind of wiring where I can handle the same appliance from two places, that kind of wiring is known as staircase wiring. Staircase में यही होता है, अगर मुझे ऊपर जाना है और बल्ब चालू है, ऑन है, लेकिन मेरे ऊपर जाने के बाद फिर वो बल्ब का काम नहीं है, तो मैं नीचे से बल्ब को ऑन करूंगा, ऊपर जाऊंगा और ऊपर से बल्ब को ऑफ कर दूंगा. हो गया. फिर नीचे से कोई अगर आने वाला है तो वो ऑन कर सकता है वापस. So that is staircase wiring. That is same which is found in many of the homes near the door and near the bed. दोनों एक ही कनेक्शन की स्विचेस होती है. होटल में भी होता है, बहुत जगह पे होता है. तो ये एडवांटेजेस ऑफ अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल तो हमने पहले भी किया था, 8th चैप्टर में भी था ये, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन सीरीज. सीरीज पता है तुम्हारी दिवाली की लाइट्स होती है सीरीज वाली, नॉट दैट चाइनीज लाइट्स, बट जो इंडिया में बनाते हैं ना घर से, बल्ब होते हैं अलग अलग. आई डोंट नो तुमने देखा है कि नहीं, अभी तो वो सब चाइना वाली लाइट लगाते हैं. उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाता है ना तो पूरा बंद हो जाता है, बिकॉज दैट्स सीरीज. एक ही पाथ है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए. अगर एक भी बल्ब भी फ्यूज हो गया या ब्लो हो गया तो सब बंद हो जाएगा. So you have to make sure that bulb is operational for all the bulbs to work. फिर सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता है. The voltage goes on decreasing. If the voltage goes on decreasing, that means बल्ब सारे डिम हो जाएंगे. हाँ, फिर सबके लिए एक ही स्विच होती है, सबको अलग अलग ऑन ऑफ नहीं कर सकते. तो पैरेलल में ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकते हैं. पैरेलल में सबकी अलग स्विच, सबके अलग फ्यूज, सबको सेम वोल्टेज, मेंस का वोल्टेज मिलता है, एंड कोई एक खराब हो गया तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, अभी कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स बताएं हाउस वायरिंग सिस्टम के. एक तो है फ्यूज. सो इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट.
एक फ्यूज होता है तुम्हारे मीटर रूम में, मीटर के पहले लगा होता है। दूसरा फ्यूज होता है तुम्हारे घर पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो एमसीबीज होती है, दोज आर आल्सो फ्यूजेस, काइंड ऑफ फ्यूजेस, न्यू जनरेशन फ्यूजेस। A fuse, a normal fuse, works on the principle of heating effect of electric current. But this MCB, it works on the principle of magnetic effect of electric current. मतलब जब भी हेवी करंट फ्लो होता है तो ये MCB के अंदर का मैग्नेट एक्टिवेट हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, और फिर वो उसको नीचे की तरफ पुल कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। एंड दैट इज मोर क्विकर देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना टाइम मेल्ट होने में लगता है उसके फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ये ट्रिप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट इज मच मोर फास्टर। सो हमेशा फ्यूज की जगह अब एमसीबी का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। So it's a electric fuse is a safety device which is used to limit the current in an electric circuit. The use of fuse safeguards the circuit and the appliances connected in that circuit from being damaged. Principle: fuse works on the principle of heating effect of electric current. एक फ्यूज वायर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, मटेरियल है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में, वो है रो। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज रो L बाय A. Rho is resistivity, L is length, and A is area of cross section, which is pi r square. So due to the flow of current, it will produce heat, which is I square R, total amount of heat. I square R T होता है, but you can say heat produced per second is I square R. ठीक है, which is I square into rho L upon pi r square. If T is the temperature of the surrounding of the fuse and delta T is the rise in temperature, then loss of heat by radiation per second will be 4 times sigma, that is sigma जैसा एक letter है, which is Greek letter, times T cube into delta T times 2 pi RL. यहाँ पे जो सिग्मा है इट इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ये है तुम्हारी बुक में? इज इट देयर इन योर बुक? नहीं दिया है, अच्छा ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट डेल्टा टी से दिया है। सो द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर अबाउ इट्स सराउंडिंग is equal to delta T, which is directly proportional to I square by R cube. मतलब rise in temperature of fuse wire depends on current rating and its radius. It is directly proportional to the square of the current and inversely proportional to the cube of the radius. मतलब जितना थिक वायर है उतना टेम्परेचर उसका धीरे धीरे राइज होगा, और जितना करंट ज्यादा है उतना टेम्परेचर उसका फास्ट राइज होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस relationship they use a fuse wire in your home wherever the fuse is required. So वो जो thickness है that is dependent on the current. इसलिए हम लोग हमेशा फ्यूज वायर जब लेने जाते हैं तो फ्यूज वायर में हम लोग प्रॉपर करंट रेटिंग का फ्यूज वायर लेते हैं। जैसे तुम्हारे घर पे जो फ्यूज वायर लगा हुआ है दैट इज ऑफ 30 एम्पियर। सो इफ यू गो टू हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक शॉप एंड इफ यू आस्क देम फॉर फ्यूज वायर दे विल आस्क यू कितने रेटिंग का चाहिए, तो तुम बोलोगे 30 एम्पियर का, देन दे विल गिव यू अ प्रॉपर वन। बट तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन क्या बोलेगा पता है? फ्यूज वायर की जरूरत नहीं है, कॉपर वायर लगा दो। कभी भी कॉपर वायर नहीं लगाना है, क्योंकि कॉपर वायर कभी मेल्ट नहीं होगा, वो सारा करंट अलाउ करेगा अंदर, भले ही वो एक्सेस करंट क्यों ना हो, एंड देन ऑल योर अप्लायंसेस गेट डैमेज्ड। So never listen to the electrician if he is suggesting that you put copper wire, it is cheap. Yes. और ये जो fuse wire है, it is a special wire made of an alloy of tin and lead, which can melt very easily. So fuse is a short and thin piece of wire of uniform area of cross section and high resistance so as to produce sufficient heat to melt it. It is made up of a material of low melting point so that it may easily melt to overheating when current in excess to the prescribed limit passes through it. Generally, an alloy of lead and tin is used as a material of fuse wire because its melting point is around 250 degrees Celsius only, and its specific resistance is more than copper. So it builds up more heat very quickly. A copper or aluminum wire is unsuitable for the use as fuse wire because they have high melting point around 1080 degrees Celsius.
Moreover, the use of ordinary copper or aluminum wire as fuse must be avoided as it is very thick, so as it will not melt even if the current exceeds the safe limit. So अगर ज़्यादा current flow होगा circuit से, सब damage हो जाएगा, क्योंकि the appliance is not made to withstand that amount of current. So that's why you need fuse as a safety device. ये fuse का arrangement है, उसका construction है. So as you see, एक नीचे एक fixed socket होता है, board के ऊपर fix होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो तुम्हारे मीटर लगे होते हैं वहां पे, और ये सॉकेट में दो पिन होती है, इसको टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 बोलते हैं. ये जो दो पिन है उसके अंदर दो प्लग्स जैसे मेटालिक प्लग्स अंदर जाते हैं. ये तुम्हारे पोर्सिलिन होल्डर में होते हैं. सो होल्डर होता है, होल्डर गेट्स फिक्स्ड इनटू द सॉकेट, और वो दो पिन के बीच में दो प्लग अंदर चले जाते हैं. और जैसे ये दो प्लग अंदर फिट हो जाता है, यू विल हियर अ क्लिक साउंड. क्लिक साउंड मतलब ये फिक्स हो गया. मतलब ये सारे जो वायर्स है जो T1 और T2 के बीच में लगे हुए हैं यहाँ पे, यू सी दैट वायर ओवर हियर, T1 और T2 के बीच में दिख रहा है ये वायर, दैट्स अ फ्यूज वायर दैट गेट्स कनेक्टेड विथ T1 एंड T2 ओवर हियर, दैट इज अ लाइव वायर. सो लाइव वायर और ये पूरा फ्यूज वायर ये सब एक लाइन में आ जाते हैं जब इसको बंद करते हैं, and then the circuit gets connected. Now if at all some heavy current passes through the circuit, ये fuse wire burn हो जाता है. burn हो जाता है मतलब melt हो जाता है, और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाती है, तुम्हारी लाइट चली जाती है. फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो वो बोलेगा फ्यूज जल गया है, मतलब फ्यूज वायर मेल्ट हो गया है, तो हमें नया वायर डालना पड़ेगा. यू गेट अ न्यू वायर, ही फिक्स इट, फिनिश, खत्म. ये होता है, बहुत बार होता है. Absolutely. Trip is just falling down of the switch. हाँ, अगर ट्रिप हुआ तो यू जस्ट हैव टू ऑन इट. हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ट्रिप हो जाता है और हम ऑन करते हो वापस ट्रिप हो जाता है, हम ऑन करते हो वापस ट्रिप हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम तुम्हारे घर पे अप्लायंस में, तो वो अप्लायंस को निकालना पड़ेगा. कभी फैन में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी और. हाँ, यस यस, इट हैपेंस, इट्स वेरी नॉर्मल एक्चुअली. घर पे कोई अप्लायंस अगर फॉल्टी है तो वो अगर ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो फ्यूज बार बार ट्रिप होगा. उसको निकाल दो अप्लायंस को और फिर ऑन करो, ठीक हो जाएगा. फिर वो अप्लायंस को रिपेयर करके वापस यूज करो. बट अप्लायंस अगर फॉल्टी है तो ट्रिप होगा ही बार बार. सो इसका वर्किंग जैसे मैंने बताया वो बताया. हाँ, कभी कभी ऐसे छोटे फ्यूजेस होते हैं, कार्टिलेज टाइप फ्यूज बोलते हैं उसको. ये छोटे अप्लायंसेस में होते हैं, छोटे से मशीन्स में या फिर हैंड हेल्ड डिवाइसेस में. तुम्हें पता है वो एक्सटेंशन बॉक्स आता है राउंड, उसके अंदर भी ऐसा एक छोटा फ्यूज होता है. यू सी, राउंड ग्लास का रहता है, इधर बीच में ग्लास होता है, ग्लास केस, और ये फ्यूज वायर है, और यहाँ पे दो मेटालिक कैप्स होती है, कार्टिलेज फ्यूज बोलते हैं इसको. सो फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करना चाहिए. क्यों? वाई फ्यूज? क्योंकि द करंट इज ऑलवेज सप्लाइड थ्रू द लाइव वायर. So if the current exceeds, it will exceed in the live wire. So if you don't connect the fuse in live wire, then how will it stop the exceeding current? Because the current is coming in through the live wire, you must connect the fuse in the live wire हमेशा. और अच्छा, दूसरा, हाँ ये देखो, फिगर नंबर 9.16 में तुम्हें दिखाया है, लाइव वायर में फ्यूज कनेक्ट किया, ज्यादा करंट आया, फ्यूज ब्लो हो गया. देखा? अब अगर मैंने न्यूट्रल में कनेक्ट किया होता तो फ्यूज नहीं करंट आता. फ्यूज अगर ब्लो हो जाता फिर भी करंट आता रहता, क्योंकि करंट आ रहा है लाइव से, वो जाने वाले पाथ पे तुमने फ्यूज कनेक्ट किया है. तो करंट, अगर तुम वैसे अप्लायंस को टच करोगे तो क्या होगा, तुम्हें शॉक लगेगा, बिकॉज जो करंट का वापस जाने का पाथ है वो अभी तुम्हारी बॉडी के थ्रू फ्लो होगा. इसलिए फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करना चाहिए. It is unsafe to connect the fuse in neutral wire. If some defect in an appliance causes an excessive current to flow through it,
the fuse blows and current stops flowing in the circuit, but the appliance still remains connected to the high potential of the supply. जलेगा ना? फ्यूज अगर न्यूट्रल वायर का फ्यूज उड़ गया तो करंट मतलब कंप्लीट कैसे होगा सर? नहीं होगा ना, कंप्लीट नहीं होगा. तुम जब हाथ लगाओगे तब कंप्लीट होगा. तुम्हारे बॉडी को तो फिर तब तक जलेगा थोड़ा ना? फ्यूज जलेगा ना. फ्यूज जलेगा, वो अप्लायंस तो नहीं वर्क करेगा? नहीं करेगा वर्क. वर्क नहीं करेगा. जैसे ही तुमने हाथ लगाया वो वर्क करेगा. मतलब तुमको तो खतरा होगा ना. हाँ, क्योंकि हम न्यूट्रल रहेंगे. यस, तो हम लो पोटेंशियल पे रहेंगे. तो इसलिए हमको अपने आप को सेव करने के लिए वी शुड कनेक्ट द फ्यूज इन लाइव वायर, नॉट इन न्यूट्रल वायर. इसकी अलग अलग करंट रेटिंग होती है. जैसे तुम इसका करंट रेटिंग का एक फॉर्मूला भी है, पावर ऑफ द अप्लायंस इन सर्किट अपॉन वोल्टेज ऑफ द सप्लाई. जैसे अलग अलग अप्लायंस की अपनी अपनी पावर रेटिंग होती है. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. सपोज तुम्हारे पास है रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर पावर ड्रॉ करता है 150 वॉट का और करंट ड्रॉ करता है 0.68 एम्पियर का. तो उसमें फ्यूज लगता है 5 एम्पियर का. तुम अगर टोटल पावर अपॉन वोल्टेज करोगे, टोटल पावर इज 150, वोल्टेज है 220, 150 अपॉन 220 करोगे तो यू गेट 0.68. दैट इज द करंट. तो 0.68 मतलब 5 एम्पियर तक जितने भी अप्लायंसेस करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसको 5 एम्पियर का फ्यूज लगेगा. सो 5 एम्पियर का फ्यूज फ्रिज को भी लगेगा. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गीजर, गीजर इज वाटर हीटर, तो वाटर हीटर का पावर रेटिंग है 1500 वॉट और वोल्टेज 220. दोनों को डिवाइड करोगे यू गेट द करंट ऑफ 7 एम्पियर्स. 7 एम्पियर पे काम करने वाले गीजर को फ्यूज चाहिए 8 एम्पियर का. क्योंकि 7 एम्पियर का फ्यूज डालूंगा या उससे कम का फ्यूज डालूंगा, स्विच ऑन करते ही लाइट चली जाएगी. क्योंकि 7 एम्पियर तो ड्रॉ करेगा ही. 7 से थोड़ा ज्यादा फ्यूज हमें डालना है. 7 से कम नहीं और 7 से इक्वल भी नहीं. तो ताकि क्या होगा कि 7 तक तो वो आराम से काम करेगा. 7.5 भी गलती से हो गया करंट तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ, लेकिन 8 हो गया करंट तो फ्यूज तुरंत ब्लो हो जाएगा या ट्रिप हो जाएगी एमसीबी. So you choose the rating, current rating of fuse which is little bit higher than the current drawn by that appliance. Always remember that. MCB के बारे में दिया है. MCB में ट्रिप होने के लिए 25 मिली सेकेंड जितना टाइम लगता है. 25 मिली सेकेंड इज 1/4 ऑफ अ सेकेंड. 1/4 ऑफ अ सेकेंड में ही वो ट्रिप हो जाता है. That is very less as compared to the fuse. It is easier than fuse because it avoids the inconvenience of connecting new fuse wire and it is much more safer due to its quick response. इसलिए MCB ज़्यादा यूज हो रही है आजकल फ्यूज की जगह पे. फिर आती है तुम्हारी स्विच. स्विच दो टाइप की होती है. स्विच क्या है? व्हाट इज स्विच? स्विच का डेफिनेशन दिया है वो लोगों ने. इट्स एन ऑन ऑफ डिवाइस फॉर करंट इन अ सर्किट और एन अप्लायंस. इट इज कनेक्टेड इन लाइव वायर. स्विच को भी कहाँ पे कनेक्ट करना है? नहीं तो क्या होगा, स्विच को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करोगे ऑन ऑफ तो होगा लेकिन तुम्हारा अप्लायंस हमेशा हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड रहेगा. इफ यू हैपन टू टच दैट अप्लायंस यू विल गेट शॉक. यू माइट गेट शॉक इफ देयर इज अ अर्थिंग इश्यू विद दैट अप्लायंस. सो ये स्विच दो टाइप की होती है, सिंगल पोल स्विच एंड डबल पोल स्विच. Single pole switch, these all switches are single pole which we use in our homes. But the switch which is used in your meter room, जिसमें वो lever होता है, एक black color का knob होता है, double pole. That's a double pole switch. The main switch at the distribution board used to switch on or off the mains is the double pole switch. Double pole switch की खासियत ये है कि it disconnects both live and neutral wire together. वो दोनों को हैंडल करता है. ये स्विच सिर्फ लाइव वायर को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करती है. डबल पोल स्विच दोनों को डिस्कनेक्ट कर सकती है. तो इट इज मोर सेफर. डबल पोल स्विच इज मोर सेफर.
The dual control switch used in staircase is also a double pole switch of special kind, जो हम लोग पढ़ेंगे. स्विच को लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करना चाहिए? अभी बताया मैंने. So to disconnect the appliance from the high potential, it must be connected in the live wire only, so that on off तो होगा ही, plus it will be disconnected completely from high potential. कभी कोई अप्लायंस को रिपेयर करना है और स्विच को मैंने न्यूट्रल में लगाया और मैंने स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब तो ऑफ हो गया, लेकिन अगर मैं उसको रिपेयर करने जाऊंगा, चेंज करने जाऊंगा, तो मुझे लगेगा शॉक. क्यों? बिकॉज अभी भी हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है. इसलिए स्विच को हमेशा लाइव में कनेक्ट करना है. Safety precaution while using a switch. A switch should never be touched with wet hands. गीजर कैसे ऑपरेट करते हो? So your hands are wet, of course. You should have a towel, wipe it, and then use it. Also, don't touch it like this. Don't keep your hand parallel to the switch. Keep it perpendicular to the switch, so that the less surface area comes in contact. यहाँ पे क्या होगा कि water can seep in through that small gap into that, and you can get, and there is a spark always. You see when you on off geyser, behind it you'll see that some spark is always there. स्विच, गीजर की स्विच जो थिक वाली होती है ना, उसको ऑन ऑफ करते हो तुम. हाँ हाँ हाँ, तो यू टू डू इट लाइक दिस. डोंट डू इट लाइक दिस. Okay, so if water reaches the live wire, it forms a conducting layer between hand and the live wire of the switch, due to which a current passes to the hand through it, and the person may get a fatal shock. ठीक है. फिर सर्किट्स विद ड्यूअल कंट्रोल स्विचेस, स्टेयरकेस वायरिंग जो हमको पढ़नी थी. आई थिंक ये निकाला है तुम्हारे सिलेबस से, बट फिर भी मैं बताता हूँ तुमको कैसे करना है. क्या निकाल दिया? रिंग सिस्टम. अच्छा ठीक है. देखो ये एक डुअल कंट्रोल स्विच है. तो ये डुअल कंट्रोल स्विच में दो लाइव वायर दो अलग अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. और एक लाइव वायर पॉइंट बी से कनेक्टेड है, इफ यू कैन सी ओवर देयर. तो मतलब एक ही लाइव वायर कभी ए के साथ और कभी बी के साथ, सॉरी कभी सी के साथ कनेक्ट हो सकता है. मतलब सर्किट कैसे बनेगी? ए बी या फिर सी बी. यू सी, बट दैट हैपेंस ड्यू टू दिस नॉब. तो ये नॉब को अगर हम हैंडल करेंगे प्रॉपरली, मतलब नॉब को एक बार प्रेस करेंगे, नॉब विल गेट कनेक्टेड विद सी. तो यहां का लाइट चालू होगा. फिर और एक बार उसको ऑफ करोगे और फिर और एक बार प्रेस करोगे तो इट विल गेट कनेक्टेड विद ए. तो यहां का लाइट चालू होगा. सो दैट इज स्टेयरकेस वायरिंग. एक ही नॉब है, यू कीप ऑन प्रेसिंग इट, यहाँ की और यहाँ की दोनों की लाइट को मैं हैंडल कर सकता हूँ. स्टेयरकेस में ऐसा नहीं होता. यू नीड टू स्विचेस ऑल्सो, बट समटाइम्स यू रिक्वायर सच स्विचेस विच कैन हैंडल टू अप्लायंसेस simultaneously with a single switch. So that is a dual control switch. Dual control switch means a switch which controls two device with one single switch. दो कंट्रोल एक ही स्विच में. तो ये उसका एक डायग्राम है. और जो स्टेयरकेस वायरिंग होता है, दैट इज शोन ओवर हियर. नाउ यू सी दिस. ये पोजीशन जो फर्स्ट वाली पोजीशन है, उसमें बल्ब ऑफ है. क्यों ऑफ है पता है? दिस इज योर लाइव वायर. मैं यहां पे दिखाता हूं. दिस इज योर लाइव वायर. लाइव वायर से कहां पे जा रहा है ये? बी. बी टू सी, सी टू यहां पे सी, सेकेंड स्विच, स्विच S1 का सी, और यहां पे आके डिस्कनेक्ट हो गया. मतलब लाइव वायर कहीं पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है बल्ब से. तो मतलब बल्ब क्या रहेगा? ऑफ. लेकिन if I want to connect the live wire to my bulb, what will I do? I will turn the switch S1 from this position, AB position, to BC position.
तो क्या होगा, लाइव वायर यहाँ से आएगा, यहाँ पे स्विच बीसी पोजीशन में, अगेन यहाँ पे जाएगा स्विच बीसी पोजीशन में, यहाँ से जाएगा बल्ब में, और बल्ब से जाएगा सीधा बाहर। यू सी दैट? समझ में आया? ओके, देन यू कैन डू वन मोर थिंग। अगर तुम ये बीसी स्विच की पोजीशन चेंज कर देते हो तो ये पोजीशन हो जाती है ए बी। अब यहाँ पे तो नीचे बीसी है और यहाँ पे ए बी है, फिर से बल्ब ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर एक स्विच ऑन और दूसरी स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑफ रहेगा। पहली वाली स्विच ऑफ और दूसरी ऑन है तो भी बल्ब ऑफ रहेगा। दोनों को या तो ऑन रखना है या दोनों को ऑफ रखना है, ऑन ऑफ। अगर दोनों को साथ में ऑन ऑफ करोगे तो ही बल्ब चालू रहेगा। So you have to make sure that the circuit is connected somehow. So for that you need to make both the switches in either on position or either off position, तो ही वो सर्किट कनेक्ट होगी। तो ये स्टेयरकेस में कैसे काम आता है, सपोज मैं नीचे खड़ा हूं, बल्ब है और यहाँ पे पोजीशन ऑफ दिख रही है, बल्ब भी ऑफ दिख रहा है, मतलब ऊपर पोजीशन क्या होगी स्विच की, ऑन। ऑन, एक ऑन एक ऑफ, मतलब बल्ब ऑफ, ठीक है। अब मुझे बल्ब को क्या करना है, ऑन करना है, तो ये नीचे वाली स्विच को मैं ऑन कर दूंगा। ऊपर वाला ऑलरेडी ऑन था, मैंने नीचे भी ऑन कर दिया, अभी दोनों ऑन हो गए, मतलब बल्ब चालू हो गया, मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाके मुझे बल्ब ऑफ करना है क्योंकि मैं अभी उसको यूज नहीं करने वाला स्टेयर्स को, तो ऊपर वाली स्विच को मैं अब ऑफ पे लेके आऊंगा। नीचे वाली क्या थी, ऑन, अभी ऊपर वाली क्या हो गई, ऑफ। ऑन ऑफ आया मतलब हाँ दोनों ऑफ, फिर से चालू हो जाएगा बल्ब। सो इसी को तो बोलते हैं डुअल कंट्रोल। दोनों जगह सेम पोजीशन होगी मतलब बल्ब ऑन, दोनों जगह अगर डिफरेंट पोजीशन है तो बल्ब ऑफ। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द सर्किट फ्रॉम टू वेज। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेयरकेस वायरिंग। द नेक्स्ट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे मीटर रूम में नीचे एक होल करके ऐसा ग्राउंड के अंदर थिक कॉपर वायर डालते हैं हॉलो पाइप के थ्रू, और नीचे कॉपर की प्लेट होती है, वहां पे मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट डालते हैं, एंड इधर इसमें कंटिन्यूसली मतलब पीरियोडिकली वाटर ऐड करते रहते हैं ये कंडक्टिंग मिक्सचर बनाने के लिए। और यहाँ से जो वायर कनेक्ट होता है तुम्हारे घर पे आता है थ्रू KWH मीटर, दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। ये अर्थ वायर का क्या फायदा क्या है, if due to some reason such as short circuiting, an excessive current starts flowing through the line wire, it will pass to the earth through the earth wire if there is local earthing. Otherwise the line wires may get overheated and may cause a fire. तो अगर किसी रीजन से शॉर्ट सर्किट से बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करने लगा तो ये पूरा जो एक्सेसिव करंट है वो अर्थ वायर से सीधा अर्थ में चला जाएगा और हमारा कोई भी अप्लायंस डैमेज नहीं होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि एक्सेसिव करंट आके चला गया, तो उसका एक साइन है, whenever excessive current flows through the earth wire the fuse will get blown off. फ्यूज जल जाएगा अपने आप ही, तुमने कुछ नहीं किया है, अपने आप लाइट चली गई और तुमने देखा फ्यूज जल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस अर्थिंग। अर्थिंग का बेनिफिट है ये कि कभी भी अगर एक्सेसिव करंट अंदर आता है तो वो सीधा अर्थ में चला जाता है, और जब भी अर्थ में करंट जाता है तो फ्यूज ब्लो हो जाता है। मैंने तुम्हें बताया था अर्थ इज रिजर्वॉयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अर्थ ये जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो अपने थ्रू ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है। तो जब वो अपने अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इज चार्जेस बेसिकली, तो वो चार्जेस जब फ्लो होंगे वो हेवी करंट के फॉर्म में फ्लो होंगे, और जैसे ही फ्यूज में से हेवी करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। So earthing always saves you from excess current, remember, and that can be due to any reason, due to short circuit, due to damage in appliance, कोई भी reason की वजह से। तो अभी फ्यूज जब उड़ जाएगा तो फिर कनेक्शन बैठेगा ही ना। हाँ फिर तुम्हें फिर हाँ हाई करंट जाएगा लाइव वायर से, क्योंकि करंट सप्लाई कौन करता है, लाइव वायर, लाइव वायर से। तो फ्यूज अगर फट गया तो लाइव वायर
कैसे कनेक्ट होगा? फ्यूज हट गया तो फिर सेफ हो गए हम लोग, लाइट चली गई। अरे सर अभी हाई करंट आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं नहीं समझे नहीं तुम। हाई करंट कब आएगा पता है? जब कोई शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसा कोई ज्यादा करंट ले रहा है वहां पे। हाँ नहीं, ज्यादा करंट क्यों लेगा ये भी मैं बताता हूँ तुम्हें। सपोज एक अप्लायंस है, ठीक है, अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइव वायर न्यूट्रल वायर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स अप्लायंस के थ्रू जा रहे थे लाइव टू न्यूट्रल, वो अब डायरेक्ट जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत हैवी करंट ड्रॉ होता है। कहां से? लाइव से। कौन ड्रॉ करता है? ये न्यूट्रल वायर, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब अर्थ वायर ऑलरेडी उस सर्किट में कनेक्टेड है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। थ्रू न्यूट्रल कहां पे चले जाएंगे? अर्थ में। और अर्थ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, कहां से? लाइव से। तो लाइव में जो पहले बीच में रुकावट आती है, दैट इज योर फ्यूज, वो ब्लो हो जाएगा। So earth wire, what it does, it draws more current so that the fuse can get blown off. Short circuit is when live wire and neutral wire gets connected, if their insulation is worn out or if cut due to any accident or gets burnt off. कभी अभी मेल्ट हो जाता है इंसुलेशन हाई हीट कंटेंट की वजह से, तो वो बर्न होके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे स्पार्क निकलती है, जल जाता है, वो फायर हो जाती है। और उससे भी अगर फ्यूज कनेक्टेड है तो फ्यूज ब्लो हो सकता है। कभी कभी फ्यूज नहीं होता है तो देन इट रिजल्ट्स इन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फायर्स बोलते हैं उसको। अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, अभी यहां पे तो मैंने अर्थिंग का तुम्हें मतलब बताया कि इट जस्ट कट्स ऑफ द फ्यूज, ठीक है, बट अप्लायंस को भी अर्थिंग किया जाता है, खास करके हैंड हेल्ड अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन को तुम हैंडल करते हो, राइट, और उसमें मेटल का पार्ट भी होता है, जो नीचे वाला बेस होता है दैट इज मेटालिक। ये जो मेटालिक पार्ट है वहां पे अंदर एक वायर कनेक्ट करते हैं, अंदर ही उसको सोल्डर कर देते हैं या वेल्ड कर देते हैं, और वो वायर कनेक्टेड होता है तुम्हारे अर्थ वायर से। और ये अर्थ वायर कनेक्टेड होता है तुम्हारे प्लग से, जो इलेक्ट्रिक आयन का प्लग होता है ना, उसमें 3 पिन्स होते हैं, अर्थ पिन, न्यूट्रल पिन एंड लाइव पिन। सबसे लंबा वाला जो ऊपर वाला पिन होता है दैट इज अर्थ पिन। वो अर्थ पिन तुम्हारे प्लग के अंदर होता है, और वो प्लग से वो जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, और अप्लायंस की मेटालिक बॉडी पे उसको वेल्ड कर देता है। ठीक है, अब मैंने प्लग को अंदर डाला सॉकेट के अंदर, और कुछ डैमेज है मेरी आयन में, जिससे लाइव और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर तीनों कनेक्ट हो गए, मतलब उसका अंदर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो गया। कभी कभी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक आयन होती है उसका जो जहाँ से वायर अंदर जाता है वो पूरा वॉर्न ऑफ हो जाता है, तो वहां पे ही सपोज इंसुलेशन ब्रेक हो गया और लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर या उनमें से कोई दो एक साथ कनेक्ट हो गए, तो ये करंट कहाँ पे जाएगा? डायरेक्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंस में। और अप्लायंस में अगर जाएगा और अर्थ नहीं किया हुआ है ठीक से और तुम उसको टच करोगे तो तुम्हारे बॉडी के थ्रू वो करंट जाएगा अर्थ में और तुम्हें शॉक लगेगा और फिर फ्यूज जलेगा, है ना। फ्यूज तभी ब्लो होगा जब तुम्हारे बॉडी से करंट जाएगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग से क्या होता है, जैसे ही मैं प्लग को सॉकेट में डाल के ऑन करता हूं लाइट चली जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने प्लग को अंदर डाला और जैसे ही मैंने ऑन किया करंट अंदर गया लाइव वायर से, और वहां पे क्योंकि जो मालफंक्शन था मेरे इलेक्ट्रिक आयन में, उससे करंट गया अर्थ वायर में, अर्थ वायर से गया सॉरी उससे करंट गया मेरे इलेक्ट्रिक आयन के मेटालिक बॉक्स में, मेटालिक बॉक्स से गया अर्थ वायर में, और अर्थ से गया अर्थ में, अर्थ वायर से। तो अर्थ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा फ्यूज ब्लो हो जाएगा। सो दिस हैपेंस सो क्विकली दैट जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं लाइव वायर अंदर जाता है, अर्थ में चला जाता है और फ्यूज ब्लो हो जाता है या एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो अगर तुम कोई भी अप्लायंस हैंडल कर रहे हो एंड इफ यू आर पुटिंग दैट प्लग इनसाइड द सॉकेट एंड इफ यू आर स्विचिंग ऑन द डिवाइस एंड इफ द लाइट ब्लोज ऑफ, देन अंडरस्टैंड दैट ये फॉल्ट तुम्हारे अप्लायंस में, क्योंकि उसको कनेक्ट करने से ही लाइट गया,
या पावर सप्लाई कट हुआ है, इसका मतलब है प्रॉब्लम उसमें है, मतलब तुम्हें उसको चेक करवाना चाहिए. देन गेट इट टू एन इलेक्ट्रिशियन और हुएवर रिपेयर्स इट टू द कंपनी, गिव इट फॉर रिपेयर और वट एवर एंड गेट इट चेक. फिर वो लोग बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे. सो हैंड हेल्ड अप्लायंसेस जो होते हैं विच आर, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, बट वो उसमें मेटालिक पार्ट होते नहीं है जनरली. इलेक्ट्रिक आयरन इज ओनली वन. केटल इज ऑल्सो देयर, इलेक्ट्रिक केटल जो पानी गर्म करने के लिए यूज होता है, उसमें भी पॉसिबल है ऐसा. सो उसमें अर्थिंग होना बहुत जरूरी है. इसलिए माइक्रोवेव अवन, उसका साइड का बॉक्स पूरा मेटल का होता है, उसमें भी तुम प्लग देखोगे तो इट इज 3 पिन प्लग. रेफ्रिजरेटर का प्लग, वॉशिंग मशीन का प्लग, ये सब 3 पिन, बिकॉज दे हैव मेटालिक बॉडीज. सो फॉर सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट एंड फॉर अर्थिंग दे हैव दिस 3 पिन प्लग. सॉकेट के बारे में दिखाया है तुम्हें. सबसे बड़ा होल जो होता है सॉकेट में, दैट इज अर्थ, वो 3 पिन की ऊपर वाली पिन के लिए, और देन देयर इज लाइव एंड न्यूट्रल बिलो दैम. ओके, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स, ये एक इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना है. सो इफ यू ओपन द इलेक्ट्रिक switch board, you will see, if the you don't have to open, the electrician will open, and you will see that there are many colorful wires inside. So generally the color coding, old color coding was red color wire for live. तो रेड वायर मतलब लाइव है, समझ लेना. ब्लैक मीन्स न्यूट्रल, बट इसका ये मतलब नहीं है ब्लैक को मैं ऐसा गले में डाल के नागिन डांस करूं, नहीं करना चाहिए. ठीक है, ब्लैक में भी करंट हो सकता है. We know that many times current goes back to that through that wire. And earth means green. तो earth means green का ये मतलब नहीं है कि मैं earth wire है तो मैं मतलब उसको लेके प्लांट कर दूं, उसको भी टच नहीं करना चाहिए, because that also can carry current. बट जो न्यू कन्वेंशन है, दैट इज लाइव के लिए ब्राउन कलर दिया है. आई डोंट नो व्हाई, रेड वाज बेटर. न्यूट्रल के लिए लाइट ब्लू दिया है, और अर्थ के लिए ग्रीन या फिर येलो दिया है. So you might see one of these 3 colors from the new convention, or if the building is old, you might see old convention. But still, let me tell you, if you go to electric shop, they have red, black and green going on still. ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो गया, सबने चेंज कर दिया, ऐसा कुछ कोई करता नहीं है. And then there are high tension wires, जिसके ऊपर वो बर्ड बैठ के. Each wire and cable is capable of withstanding up to a specific limit of current. If current exceeds this limit due to short circuit or high voltage fluctuations, the wire may burn due to excessive heating and it may cause a fire. To avoid it, for high voltage and heavy current, a special wire called high tension wire is used. High tension wire has low resistance and large surface area. It is thick. Therefore, instead of taking a single thick wire of low resistance as a high tension wire, it is made by twisting together number of thin wires insulated from each other. This provides large surface area so that it radiates the heat produced more readily to the surroundings as compared to single thick wire. And then there are some safety precautions while using the electricity, electric shock and fire se bachne ke liye. There are 2-3 things which they have told. Some simple numericals, but yeah, these are based on the formula which you have studied in class in chapter 8, so you have to go through that again. Yep. मेरे डैड ने मेरे को एक वीडियो भेजा था